Okay. We are live? Okay. Just a second. Yes, we are Yes. live. Yes. So, a very good evening, everyone. This is Nehal Yadav. I'll be hosting the panel today. I'm a third year EXTC student and an editor at Code Chef REIT. So, this podcast is organized by Code Chef REIT in collaboration with CodeOS. So, today we have the Code Chef REIT president, Mirnalini Sahu, with us. So, Mirnalin, can you give a brief introduction about yourself? Okay, so hello everyone. I'm the president of Coach of RAIT chapter. I have been into competitive programming since the last 1.5 years. So this is today we have Kushal Vijay, a perfect guide to guide us throughout our journey, coding journey. So don't be shy and get all your doubts cleared. Okay. So So let me introduce you to our very esteemed guest. Our guest in question is a software developer at Microsoft with a hefty package and an ICPC 2019 regionalist. He's an EXTC student from NIT Jalandhar, and to top everything off, he has 27,000 subscribers on his YouTube channel. So without further ado, welcome Kushal. The floor is yours. सो फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि अभी सब ऑफलाइन ऑनलाइन से ऑफलाइन गया है एंड अभी अभी यू विजिटेड लाइक वी स्टॉक्ड यू एंड वी कि अभी देखा कि यू विजिटेड द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सो कैसा लग रहा Yeah. है वो एक्सपीरियंस टू शिफ्ट फ्रॉम यू नो ऑनलाइन से ऑफलाइन तक First of all, thanks a lot for inviting me. I hope my like whatever I'll speak will help the students who will be watching the video or who is going to watch the video. I hope if this video is going to be there on the internet for a while. So, starting from your first question, you know, thanks for the introduction as well. You have almost told everything about me. So, आपका जो question है, first of all, I want to know which language you want me to continue this session in English or in जो Hindi? भी कंफर्टेबल है आप हिंदी में भी बोल सकते हो इंग्लिश में भी बोल सकते हो Okay, so let's keep it in Hindi because it's make a good connection. या So आपका question था कि how's my experience visiting the office for the first time, right? yes. Yeah. यस तो देखो कोई भी नई जगह आप जाते हो जिसके लिए आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज हो गया आपका, या फिर आप जब छोटे होते हो तो स्कूल जब पहली बार जाते हो, तो काफी इंटरेस्टिंग नई जगह पे जाना हर किसी को पसंद होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस भी उसी तरीके से था यार कि मैं किसी ऐसी जगह पर गया जो कि जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। ऑब्वियसली मेरे को 10 मंथ्स हो गए काम करते हुए, और एक काफी अमेजिंग सी प्लेस है जिसके बारे में सुना लोगों से बहुत था पर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। It was an amazing experience meeting with people, learning about their experiences and getting that feeling of working in the office was really amazing. So आई फील कि सबको जो भी एम करते हैं अच्छी अच्छी कंपनी में काम करने के लिए, उनके लिए एक मोटिवेशन की तरह उस पोस्ट को लेना चाहिए या फिर उस वीडियो को लेना चाहिए उन्हें, क्योंकि और अपने आप को बोलना चाहिए कि यार एक्चुअली काफी अच्छी चीज है, काफी अमेजिंग सा एक्सपीरियंस है भैया का भी, या वट एवर। तो हमें भी ऐसे कुछ करना है लाइफ वेरी रिलेटेबल जैसे कि हम लोग 2 साल बाद कॉलेज जाके लाइक ओवरवेल्म्ड एंड एक्सप्लोरिंग that would have been the like similar scenario, right? में। So एग्जैक्टली। I wanted to ask you another thing that we have many other YouTubers working in Microsoft. Have you met all of them like Love Papar Bhaiya, Nishant Chahar Bhaiya? I have met like Labbapar Bhaiya over a video call. We haven't met Yeah. over like physically yet. Okay. I have met Nishant quite a few times. So Nishant is a good friend of mine. There are other YouTubers, Rohan Prasad. I have met him, but online only. Other than that, I don't remember any other YouTubers from Microsoft. If you know, please let me know. I'll connect with them. Sure, sure. That would have been fun. Like a YouTubers gathering. Okay. But there are a lot of amazing people which work at Microsoft, and like a friend of mine. For example, if I talk about people who are very much active on LinkedIn or Twitter, like Khushbu Verma, like Urvi Goyal, like Sashrika Kaur. So these, Yeah. Shreya Prasad, she is not in Microsoft, but
these people are active on social platforms and they are contributing back to the community. So I'm connected with them as well, and but still haven't met. Cool. ओके सो अब हार्ड हिटिंग क्वेश्चन से शुरू करता है पॉडकास्ट Yes. सो यू आर एन EXTC स्टूडेंट एंड हेंस स्टार्ट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक स्टीरियोटिपिकल क्वेश्चन कि भैया कोडिंग कैसे करते हैं सो नहीं जोक्स Okay. अपार्ट कि लाइक वी वांट टू नो अबाउट योर जर्नी क्योंकि एज एन EXTC स्टूडेंट वी लर्न समथिंग एल्स पूरा 4 साल and then we want to work into something else most of the time so how Mhm. your coding journey has been throughout the 4 So years. mhm. I believe you're referring EXTC to electronics and communication, right? Yes. Yeah. Okay. हाँ मतलब क्या हुआ था ना, जब मैं कॉलेज आया था तो मुझे भी थोड़ा, मेरे को तो आइडिया नहीं था, देखो ऑनेस्टली मेरे को बस ये पता था कि मेरे को किसी ने बोला था इलेक्ट्रॉनिक्स इज द क्लोजेस्ट टू कंप्यूटर साइंस, और मैं उससे खुश हो गया था when I came to college. तो पॉइंट ये था कि मेरे को मिला नहीं था कंप्यूटर साइंस बिकॉज मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे कि मेरे को CSE मिल जाए कॉलेज के अंदर. बट इवेंचुअली कॉलेज में आ गए. लैंग्वेजेस तो पहले से आती थी बिकॉज प्लस टू में हम पढ़ते हैं और मेरे को इंटरेस्ट भी था उस चीज में. फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ नहीं किया क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर करिकुलम में होता है, और वो क्यों करा रहे मैं भी नहीं समझ पाया आज तक. वो मत करो यार. ऑनेस्ट एडवाइस है सबको. दैट इज आई डोंट नो व्हाई दे आर लाइक कीपिंग सच ओल्ड करिकुलम येट, बट ठीक है. देन व्हाट हैपेंड वाज इन माय सेकंड सेमेस्टर जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया था हमारे टाइम पर ही कि मेंटरशिप का. So I was assigned a mentor. I and one of my friends from electronics branch. तो उन्होंने वहीं से मेरा जो किक स्टार्ट हुआ ना कोडिंग का जर्नी, उन्हीं के थ्रू स्टार्ट हुआ. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती थी बट कभी वो लूप पर ही रह गया था, लूप पे पैटर्न प्रोग्रामिंग पे उसी पे रह जाता. लेकिन जो मेरे मेंटर थे उन्होंने मेरी जो जर्नी थी वो शुरू कराई. उन्होंने ही मेरे को बोला, उन्होंने दे शी इंट्रोड्यूस मी टू कोडशेफ. एंड मेरी जर्नी एक्चुअली DSA से नहीं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से शुरू हुई थी. और मैंने जो किक स्टार्ट किया था वहीं से कोडशेफ के प्रोग्राम्स लिखना शुरू किया. और सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी वो ये थी कि आप जब कोडशेफ पे जाते हो तो मैंने जब शुरू किया था पूरा UI बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल चेंज हो चुका है. तो बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें उसमें ऐसा होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफिकल्टी लेवल से अरेंज होते हैं क्वेश्चंस. आई स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप. तो मैंने पहला क्वेश्चन जब देखा तो मैं घूम गया था, नहीं होगा ये सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट. Then my mentor told me, Kushal, start from the bottom because that is for the beginners. Then I started from the bottom, and then I started my journey into CP, competitive programming, and things followed up because CP करने के बाद realize हुआ okay placement के लिए कोडिंग तो करना जरूरी है, DSA भी बहुत ज्यादा जरूरी है. समर ब्रेक में CPP सीखी और DSA करना शुरू किया. DSA बहुत, फिर DSA तो चलता ही रहा, एंड देन इन बिटवीन प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू किया, डोमेन पकड़ी. बट उसके बारे में हम लेटर बात कर लेंगे. अभी मेरे ख्याल से क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि किक स्टार्ट कैसे करी मैंने प्रोग्राम. And what was your preferred language initially भी और बाद में जब पूरा डोमेन में चले गए उसके बाद भी did you Yes. change the language of preference? इस पे काफी काफी ज्यादा एक्चुअली कंट्रोवर्सी थी क्योंकि मैं जब +1 +2 में था तो मैंने पाइथन पढ़ी थी, एंड आई एम इन लव विद पाइथन. आज भी मैं करता हूँ उसको यूज. मेरे जब भी उनको कुछ प्रोजेक्ट बनाना होता है, साइड प्रोजेक्ट बनाना होता है तो. बट जितना मैंने लोगों से सुना, सीखा और यू नो एक्सपीरियंस किया, CPP इज समथिंग जो कि काफी अमेजिंग सी लैंग्वेज है जो आपको हेल्प करेगी आपके इंटरव्यूज में भी. एंड इंटरव्यूज में, प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी CPP को लेकर. लेकिन पाइथन के केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है कभी कभी. कभी के इंटरव्यूअर्स आपको प्रेफर नहीं करते. किसी का व्हाट्सएप एक्चुअली खुला हुआ है उसमें डेस्कटॉप में, तो Okay. उसका या तो Okay. टैब म्यूट कर दो. ओके. देन इंटरव्यूज प्रेफर करते हैं मोस्टली C++ को. कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आप C++ को यूज कर सकते हो. इट्स प्रीटी फास्ट. It's easy to learn. It's not difficult. If you are good at C, then C++ तो फटाफट जंप कर जाओगे. When it comes to Python, प्रेफर नहीं करते लोग, बोलते हैं कि slow है, blah blah blah. When it comes to Java, it's very difficult to learn it because थोड़ा सा उसमें ना थोड़ा heavy language है. उसको पढ़ने में ही टाइम लग जाता है, सीखने में टाइम लग जाता है. तो that is the reason I prefer C++ and I'm still using it because I work on Android platform. तो उसका जो backend होता है वो हम C++ में कोड करते हैं, जो front end होता है Java में करते हैं. But most of the time मैं CPP में ही काम कर रहा हूँ, Microsoft में भी. So I would recommend everyone to learn C++.
पाइथन इज ऑल्सो ग्रेट बिकॉज पाइथन में ही मेरा सारा डेवलपमेंट वर्क है, और मैं उसको कभी भूल भी नहीं सकता, क्योंकि एक बार आप चीज लैंग्वेज सीख लेते हो तो भूलते हो कभी भी नहीं हो सकता। बट सीबीबी शुड बी योर प्रेफरेंस। ओके, आई थिंक पूरा सम अप कर दिया क्वेश्चन को। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि मेजॉरिटी ऑफ आवर व्यूअर्स आर फ्रॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, सो यू नो अभी सब ऑप्शंस देख रहे हैं अबाउट इंटर्नशिप्स एंड यू वर माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न, सो हाउ डू यू लैंड सच बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इंटर्नशिप्स, लाइक चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे सिस्को हो, सो व्हाट इज योर गाइड टू दैट? ओके, तो देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो कि वो आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स, वो लुकिंग फॉर फुल टाइम जॉब्स, देखो 5 पिलर्स है। 5 पिलर्स ही सबको बोलता हूँ, अगर आप उन 5 पिलर्स को अच्छे से, like if you're standing tall along with those 5 pillars, you're good to go. 5 pillars goes like this. First is the basics. Basics include learning of you should know a programming language जो कि उस concepts को follow करती हो। अब वो सीपीपी भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है, कोई सी भी लैंग्वेज आप अच्छे से कर लो, क्योंकि बहुत इजी सा टास्क है अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो या फिर चाहते हो उस पर्टिकुलर डोमेन में जाना। सेकेंड थिंग इज योर असेंशियल्स। असेंशियल इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम बहुत वास्ट टॉपिक है। कोई बोल रहा है आपको अगर वो 1 महीने में करा देगा, या कोई बोल रहा है आपको 2 महीने में करा देगा, तो वो मजाक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं कर, देखो 50-60 दिन में कुछ नहीं हो रहा, आप डीएसए कंप्लीट नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक। हाँ, आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस अगर कर रहे हो डेफिनेटली आप 1 महीने में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स अ वेरी ह्यूज ह्यूज थिंग। आप अगर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करोगे, एक से इवन अ सिंगल टॉपिक, तो उसमें आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स करनी पड़ेगी, और किसी भी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, सो इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम का डीएसए में जाता है, देन यू शुड जंप टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी बिकॉज आप कंपनी में जाके लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस का कोड तो लिख नहीं रहे होगे, वहां पे आप डेवलप कर रहे होगे, चीजें प्रोडक्ट बना रहे होगे। तो इसीलिए डेवलपमेंट स्किल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, और आपको ये दो चीजों में हेल्प करता है। पहला आपके रिज्यूमे में ऐड हो जाता है, दूसरा आपको बीटेक के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी, जो डिग्री प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप कहते हैं बीटीपी बोलते हैं शायद, हाँ बीटेक प्रोजेक्ट ही बोलते हैं, तो वो भी, उसमें भी आपका इसी के साथ काम निकल जाता है। तो डेवलपमेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कौन सी फील्ड में करें, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। एंड्रॉइड डेव में करें, मशीन लर्निंग में करें, वेब में करें, किस में भी कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट दैट यू शुड नो इन एंड आउट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, एंड यू शुड कंज्यूम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज प्रिफर्ड। बिकॉज आज अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हो, पीएचपी में वेबसाइट बनाते हो, तो you won't be able to add the latest UI technologies, और जो भी लेटेस्ट चीजें है ना वो आप ऐड नहीं कर पाओगे, बिकॉज लेगेसी लैंग्वेज है वो फॉर वेब डेवलपमेंट। इसीलिए जो भी लेटेस्ट टेक है उसके साथ काम करो, ताकि, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इट इज डिजायर्ड टू हैव लर्निंग एटीट्यूड, ताकि आप जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको आप पढ़ते रहो रेगुलर टाइम इंटरवल्स में, और आप अपडेटेड रहो जो भी चल रहा है मार्केट के अंदर। तो डेवलपमेंट में कोई सी भी डोमेन चुन लो, बट जो भी बनाओ आपको उसका इन एंड आउट पता होना चाहिए, और मेक श्योर इट डजंट इवन मैटर कि आप कितना सिंपल प्रोजेक्ट बना रहे हो। इट्स जस्ट यार, ई कॉमर्स वेबसाइट एक कुछ कोई भी बना सकता है, बट ई कॉमर्स वेबसाइट विद डिफरेंट एपीआई इंटीग्रेशन साउंड्स बेटर ना। तो आप कोई भी सिंपल सा आइडिया लेकर भी उसे बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हो। जितना अच्छा वो आप प्रोजेक्ट बनाओगे उतना ही आपका रिज्यूमे बेहतरीन दिखेगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, हाँ, फोर्थ पॉइंट इज कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं हमारे सीएस फंडामेंटल्स लाइक जीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम डिजाइन ऑल्सो। तो यार इनका जो इम्पोर्टेंस है वो होता है, लेकिन नॉट इन ऑल कंपनीज। व्हेन इट कम्स टू गूगल, गूगल नहीं पूछता बिल्कुल भी। व्हेन इट कम्स टू माइक्रोसॉफ्ट तो पूछते हैं, लेकिन मतलब वो सुपरफिशियल लेवल पर आपसे पूछेंगे, लेकिन सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज में पूछ ही लिया जाता है। व्हेन इट कम टू Amazon तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको ग्रिल करेंगे, डीबीएमएस पे ग्रिल करेंगे, ओएस पे ग्रिल करेंगे, और सीएन पे भी ग्रिल करेंगे, तो आपको इन टॉपिक्स पे भी ग्रिल करते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो आपको इन जनरल नॉलेज होनी चाहिए इन टॉपिक्स की, इन डेप्थ ना हो तो, बट इतना तो हो कि आप इंटरव्यूज के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकें। फिफ्थ इज catalyst. Now, what is a catalyst in chemical reaction? It can help you to get the products from reactants very quickly. It accelerates the process.
सिमिलरली कैटलिस्ट आपकी जॉब या इंटर्नशिप दिलाने के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है. नाउ कैटलिस्ट हियर इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. सेकंड इज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. थर्ड इज पार्टिसिपेशन इन हैकाथॉन. तो अगर आप ये चीजें करते हैं ना, तो जो आपकी जॉब पाने की प्रोसेस है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो जाती है. आई गिव एन एग्जांपल. इफ यू नो प्रियांश अग्रवाल, जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 है इस साल के किक स्टार्ट के राउंड, आई डोंट रिमेम्बर द राउंड, रिसेंट राउंड में उनका रैंक 1 आया था. तो उनको उसके साथ ही बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आने लगी. उनको अपनी सीपी की वजह से फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी. सो ही इज अर्निंग वेल even before getting an internship or anything. तो सिमिलरली अब मैंने क्या किया था, मैं फ्रीलांसिंग करता था. आई वाज इनटू डेवलपमेंट अ लॉट. तो मेरे को फ्रीलांसिंग की वजह से एक ओपन सोर्स कंपनी में, एक कंपनी है स्टैक गार्डन, उसमें काम करने का मौका मिला. इंटर्नशिप करी मैंने 10 महीने की बिफोर ज्वाइनिंग माइक्रोसॉफ्ट. सो इफ यू हैव दैट एक्स्ट्रा स्किल, इट विल डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करता है वो दूसरों पे एज दिलाने में. आई होप थोड़ा ज्यादा बोल दिया या था. नहीं नहीं, काफी काफी अच्छा आंसर था ये. फर्स्ट की लैंग्वेज सीखना है, देन लाइक स्टडिंग डीएसए, देन डेवलपिंग गुड प्रोजेक्ट्स. अबाउट प्रोजेक्ट्स लाइक कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं आप रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स वी शुड डू इन आवर फाइनल ईयर और थ्रू आउट द 4 years. तो देखो, मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक प्यारा सा वीडियो बनाया था, और उसके अंदर जो मैंने प्रोजेक्ट आइडियाज दिए हैं, दे आर लिटरली वर्ल्ड क्लास आइडियाज. तो जितने भी व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, प्लीज उस वीडियो को देख लेना. और उसमें जो प्रोजेक्ट मैंने बताए हैं, अगर आप वो प्रोजेक्ट्स बनाते हो ना, इन एंड आउट, जो जो चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है एक प्रोजेक्ट के लिए, इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स दैट यू विल हैव ऑन योर रिज्यूमे. ठीक है. तो अगर मैं वेब की बात करूँ, तो देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप बना सकते हो. एंड सिंपलेस्ट एग्जांपल इज ई कॉमर्स वेबसाइट. और अब ई कॉमर्स वेबसाइट को आप बहुत सिंपली मत लो, उसके अंदर जितने ज्यादा फीचर्स आप ऐड कर सकते हो वो ऐड करो. फॉर एग्जांपल, आप पेमेंट इंटीग्रेशन जो होते हैं, पेमेंट इंटीग्रेशन डालो. अब उसके अंदर पेमेंट इंटीग्रेशन मल्टीपल लेयर्स आ जाती है कि आप पेमेंट गेटवे डाल रहे हो, यूपीआई गेटवे डाल रहे हो. दिस इज वन सेक्शन. अदर इज यू आर गिविंग, यू आर एडिंग अ कस्टमर सर्विस एपीआईज टू योर प्लेटफॉर्म, कि कस्टमर चैटबॉट से इंटरैक्ट कर सकता है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर. दिस इज समथिंग वेरी यूनिक. थर्ड इज, आप जो आपके ऑर्डर्स हैं उसमें यूजर हैज द एबिलिटी टू wish list items, right? And accordingly, you can add a recommendation system in your particular e-commerce website to recommend similar items to that particular user based on their wish list. तो ऐसे बहुत सारी यूनिक चीजें हैं जो आप कर सकते हो. ऑल्दो दे आर वेरी कॉमन फ्रॉम द, लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट Amazon और Flipkart, बट व्हेन यू डू दिस ऑन योर ओन इन योर कॉलेज प्रोजेक्ट, ऑटोमेटिकली यूनिक लगता है. तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जब मैं सेकेंड ईयर में था. तो मेरा एक प्रोजेक्ट था कि I made a website where you can search anything, like whatever you want to buy. So आज आप कोई भी चीज बाय करने जाते हो तो आप क्या करते हो? फ्लिपकार्ट पे जाते हो, Amazon पे जाते हो, स्नैपडील पे जाते हो, और पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट पे जाते हो. What my project did was, you just have to write what you want to buy. It brings data from multiple websites for you to compare on a single page. Now you can control everything there, the number of items you want, the data you want. I was presenting relevant data like price, images, details, comparison, everything on a single page. So you can compare, okay, this product is of this price at this place, and similar product is of this price on this website. Why not go for this one? Because यहाँ पे सस्ता पड़ता है. तो ये मैंने बनाया था. ये प्रोजेक्ट मेरी लिंक आपको गिटहब पे भी मिल जाएगा. इसका नाम मैंने स्मार्ट बाय करके रख रखा है. तो मेक श्योर यू चेक दैट आउट एज वेल. कुशल विजय नाम से मेरा गिटहब पे आपको अकाउंट मिल जाएगा. वहाँ पे काफी रिपोजिटरीज हैं, काफी अच्छी अच्छी रिपोजिटरीज है, यू कैन चेक इट आउट. ओके ओके, सो चैट बॉक्स का एक क्वेश्चन है. सर, सिर्फ अच्छी प्रोजेक्ट्स, ओपन सोर्स और अच्छे डीएसए हो तो क्या सीपी करना ज़रूरी है? अच्छी प्रोजेक्ट, ओपन सोर्स और अच्छी, मतलब who's there is no saying that CP is required. ठीक है, सीपी जरूरी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई नहीं कहता. इट्स जस्ट दैट आपको सीपी हेल्प करती है ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने में, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में. अब यार देखो, जो भी कंपनी क्वेश्चन आते हैं, Amazon आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही है, तो you might take 20 minutes. A person who is doing CP will might take 10 minutes only to solve that problem.
तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं उससे। तो आपके लिए जो प्रॉब्लम्स होती है जिसमें आपको 20 मिनट लग रहे हैं, वो सीपी वाले के लिए केक वॉक की तरह होती है, वो जल्दी सॉल्व कर देता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। इफ एंड ऑनेस्टली आप बहुत अच्छी कंपनीज क्रैक कर सकते हो इवन इफ यू आर नॉट डूइंग सीपी एट ऑल। दैट्स Okay. completely okay. Okay. But you So need to have command over DSA. okay. Thank you. Now, next question would be कि how important are internships? And like you have done a considerable amount of internships during your engineering. LinkedIn पूरा stop किया आपका. So how was your experience throughout this internships और उसने क्या सिखाया that you are using in this real world job जो अभी आप कर रहे हो? Yes. तो देखो, जो इंटर्नशिप मैंने करी है उनसे मेरे को काफी ज्यादा हेल्प हुई एक्चुअली टू डेवलप माय स्किल। देखो, कोई भी आप जो प्रोजेक्ट बनाते हो कॉलेज में, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग दैट यू डू इन योर इंटर्नशिप। क्योंकि एक जगह वो काम, वो चीज बना रहे हो जो कि दुनिया यूज करेगी, और एक जगह वो चीज बना रहे हो जो आप भी यूज नहीं करोगे। बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो जब आप कोई चीज ऐसी बनाते हो जो सब यूज करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। छोटी से छोटी चीज, आपको इवन जो कोड आप लिख रहे हो उसकी ओरिएंटेशन, उसकी रीडेबिलिटी तक पे फोकस करना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप, एक्चुअली बहुत सारी नहीं है, सब कुछ ही नया होता है जब आप एक इंटर्नशिप कर रहे होते हो और सीख रहे होते हो। तो मेरी जो इंटर्नशिप थी उन्होंने मेरे को काफी हेल्प किया मेरे अभी के जॉब के लिए। दे मेड मी रेडी, क्योंकि उन्होंने मेरे को सिखाया कि कैसे क्वेश्चंस कब कब पूछने हैं। दे हेल्प मी टू राइट ऑर्गेनाइज्ड कोड। और ये ऐसी चीज है कि जो आप समय के साथ सीखते रहते हो। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि सबका पैटर्न अलग होता है, हर कंपनी अलग वे में, एक अलग डिजाइन, अलग पैटर्न में कोड लिखती है, राइट। तो वो आप सीखते रहते हो, बट वो हेल्प करा मेरे को जो मैंने वहां सीखा, राइट। सेकेंडली, लर्निंग न्यू स्किल्स। जब एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप कर रहा था मैं, तो मेरे को आए दिन कुछ नया सीखना पड़ता था। that helped me keeping this attitude of learning new things at regular intervals. So that is also helpful. तो यही कुछ चीजें यार। और मैं जब इंटर्नशिप किया था तो मैं इंटरेक्ट करता था लोगों के साथ अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि वो बाहर का स्टार्टअप था। तो दैट थिंग आल्सो हेल्प मी टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स विद टाइम। तो आज अगर मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर कोड कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम इज goes into investigation, meetings, and expressing your ideas to others. So that requires communication skills, and that is where uh, my internships was helpful. Okay. Now, when it comes to the importance of internship, importance हो गई, क्या ये मैंडेटरी है कि अगर आप इंटर्नशिप नहीं करते तो जॉब नहीं लगेगी? बिल्कुल गलत। कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आपकी इंटर्नशिप नहीं लगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, उसके अंदर समय बीत गया, समर इंटर्नशिप लगनी थी, समर जा चुकी है, अगला सेमेस्टर आ गया, कुछ नहीं कर सकते। तो उसको रिग्रेट नहीं करना है, प्लेसमेंट पे फोकस करना है। लेकिन स्टिल देर इज टाइम, आपने बहुत टाइम मार लिया, कहीं नहीं हो रहा है, तो गो फॉर स्टार्टअप्स। अब स्टार्टअप्स भी छोटे स्टार्टअप्स जो कि आपको मिलेंगे एंजल लिस्ट पे, या फिर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो। वहाँ पे आप मतलब फ्रीलांसिंग पे अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको मिल जाती है वहां से भी इंटर्नशिप। नहीं तो आप एंजल लिस्ट पे जा सकते हो, और एंजल लिस्ट पे जाके आप स्टार्टअप्स में अप्लाई कर सकते हो, और फिर इंटर्नशिप मिलना ज्यादा इजी होता है क्योंकि Okay. पैसा कम होता है। हाँ। ठीक है। Okay. So आपका domain of interest is back-end development and web development, if I'm not wrong. So can you give our viewers गाइड कि ये सारे डोमेन्स में कैसे एक्सेल कर सकते हैं एंड ऑल्सो ऑल द अदर डोमेन्स वन कैन एक्सप्लोर एज अ डेवलपर? हम्म। तो देखो, डोमेन्स बहुत सारी हैं व्हेन इट कम्स टू बैक, वेब डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में ऐसा सीन है, देखो, फ्रंट एंड होता है अपना, बैक एंड होता है, डेटाबेस होता है, कंबाइन कर दो तो फुल स्टैक हो जाता है। फ्रंट एंड भी ट्राई किया, मजा बिल्कुल नहीं आया, लिटरली मजा नहीं आया। बट व्हेन आई केम टू बैक एंड, मजा आया काम करने में। तो दैट इज द, आई फील कि जब तक आपको फीलिंग नहीं आ रही ना कोई काम करने पर, तो वो चीज को आप अपना पैशन नहीं बना सकते। तो मेरे को, आप अगर गौरव सिंह के वीडियो देख रहे हो, सिस्टम डिजाइन के वीडियोस देखते हो, मोस्टली आप में जितने बच्चे हैं जिन्होंने इंटरव्यूज दिए होंगे, तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए देखा होगा, या फिर मे बी आपका कॉलेज में सब्जेक्ट होगा उसके लिए देखा होगा। मैंने सिर्फ आउट ऑफ इंटरेस्ट देखे। आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने इतने प्यारे नोट्स बनाए उनके, जस्ट बिकॉज उनको उस डोमेन में अपने आप ही एक इनर मोटिवेशन था कि यार नहीं यार, क्या ही हो रहा है, मजा आ रहा है, माइक्रो सर्विसेज से खेल रहे हैं, एपीआई गेटवे है, लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो वो अगर आपको अंदर से आ रहा है तो भी आप वो चीज में, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसे कहते हैं, वो अपने आप ही आता है। देखो, उसके लिए आप फोर्स नहीं कर सकते अपने आप को। लेकिन एफर्ट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इंटरेस्ट। आप
एफर्ट लगा सकते हो उस पर्टिकुलर डोमेन में, आपको लगता है कि यार इसमें काम करूंगा तो फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन, अगर आप उसमें, आपको समझ नहीं आ रहा है एनएफटीज क्या होते हैं, सॉलिडिटी क्या होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा भी टाइम दोगे ना तो समय के साथ इंटरेस्ट बन जाएगा, एंड यू नो फ्यूचर में उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाली है। So there are a few things that I would like to recommend everyone who are looking to start a domain. One is blockchain. It's a crazy domain. If you're a college student, अगर आप initial years में हो, अगर आप blockchain और Web3 के बारे में थोड़ा जनरल बेसिक सीख जाते हो ना, सॉलिडिटी लैंग्वेज सीख जाते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना सीख जाते हो, आई कैन बेट यू आप कॉलेज एक मतलब विद इन 6 months यू विल बी अर्निंग मोर देन अ पैंग एम्प्लॉय, मोर देन दैट। इतना आप कमा लोगे फ्रीलांसिंग से वेब 3 की डोमेन में, क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि डेवलपर्स कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, ब्लॉकचेन इज वन। सेकंड इज योर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट इज समथिंग जो कि एवरग्रीन है, एंड इट इज द क्विकेस्ट वे टू गेट अ जॉब। आप वेब डेवलपमेंट मानोगे नहीं, एक महीना आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट 1 हफ्ता 2 हफ्ते में खटाखट सीख जाते हो, देन यू कैन जंप टू बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप यूआई पे काम करने लग जाते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, देन यू कैन जंप टू बैक एंड, फिर कंबाइन करके फुल स्टैक डेवलपर बन जाओ, एंड इट इज द क्विकेस्ट वे टू गेट अ जॉब इन द इंडस्ट्री। थर्ड इज योर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, जिसमें मैं अभी नया नया हूँ तो मैं कोई जॉब इंडस्ट्री के इसका इतना आइडिया है नहीं, बट iOS डेवलपमेंट इज समथिंग जो कि इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है लेकिन डेवलपर्स कम है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। हायरिंग भी कम होती है बिकॉज मतलब थोड़ा कम है iOS का, बट यू कैन ट्राई दैट डोमेन। मशीन लर्निंग, deep learning, AI, NLP are domains where freshers are rarely considered. There are very less companies which hire for these people like at fresher level for these domains. तो मैं कभी किसी को प्रेफर नहीं करता, बट अगर आपके पास रिसर्च अच्छी है, आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली टैलेंटेड लोगों के लिए तो हमेशा कंपनीज ओपन रहती हैं हायरिंग के लिए। एंड देन कम्स द एनालिस्ट रोल्स, टेक एनालिस्ट रोल, जो कि बहुत सारी कंपनीज इस पर्टिकुलर रोल के लिए हायर करती है, लाइक गोल्डमैन सैक और अमेरिकन एक्सप्रेस, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि टेक एनालिस्ट रोल के लिए भी हायर करती रहती है। तो उसमें मशीन लर्निंग वाला फैक्टर आ जाता है, बट दे डू हायर फॉर फ्रेशर लेवल एज वेल। ये कुछ डोमेन्स जिसमें आप जा सकते काफ़ी काफ़ी डोमेन्स मिल गए हमें। सो लेट्स हाँ, तो एक क्वेश्चन लेते हैं कमेंट्स में से। इंटर्नशिप वर्सेस ओपन सोर्स, व्हिच गिव मोर एक्स फैक्टर इन रिज्यूमे? ऑल्सो हाउ टू डील विद रिजेक्शंस? हो। ओके, तो इंटर्नशिप वर्सेस ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, अगर आप किसी नॉर्मल से प्रोजेक्ट में कर रहे हो, ठीक है, देखो दो चीजें हैं। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में भी अगर आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में कर रहे हो जिसकी स्टार्स बहुत ज्यादा है, जिसका यूसेज बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आप टेंसरफ्लो में आपकी पीआर मर्ज हो गई, तो इट एक्चुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, राइट। सिमिलरली अगर आप इंटर्नशिप गूगल में कर रहे हो तो इट क्रिएट्स अ इम्पैक्ट। तो आपको वहां पे जज करना पड़ेगा यार कि अगर आप गूगल में इंटर्नशिप कर रहे हो, एक तरफ आपके पास टेंसरफ्लो में कंट्रीब्यूशन का ऑफर है, तो दे समवट गूगल का ही पार्ट है वैसे टेंसरफ्लो, तो गूगल की इंटर्नशिप यहाँ मैटर करेगी। बट अगर आपके पास एक ऐसी इंटर्नशिप है जो कि एक स्मॉल स्टार्टअप में है, एंड देन एट दैट मोमेंट यू आर गेटिंग अ चांस टू कंट्रीब्यूट टू अ वेरी गुड प्रोजेक्ट इन ओपन सोर्स देव, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। आप खुद सोचो ना यार कि ये तो बड़ा बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि आप इसे कंपेयर कर रहे हो, दोनों अपने आप में अच्छी चीजें हैं, इट्स जस्ट दैट आपको वैल्यू वैल्यू खुद से जज करनी पड़ेगी कि इंटर्नशिप की वैल्यू ज्यादा होगी या फिर आपके ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की वैल्यू ज्यादा होगी, बाय लुकिंग एट द नंबर्स ऑनेस्टली। नाउ रिजेक्शंस के साथ कैसे डील करें? अच्छा एक बात बताओ, अम, कैसे इसका आंसर करूं मैं, हाउ टू डील विद रिजेक्शंस? टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो फंडा है ना सीधा सा है कि आप रिजेक्शंस को, मतलब आप जितना ज्यादा, देखो पहली बात तो आपको अप्लाई बहुत ज्यादा करना है, ठीक है। दूसरी बात, रिजेक्शन एक्चुअली आते कम है, पहली बात तो कंपनी से मेल ही कम आते हैं बच्चों को, अगर आ रहे हैं आपको तो कीप इट एज अ गुड साइन, क्योंकि आप उन उस कैटेगरी में हो जिसको एक्चुअली रिवर्ट आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात। क्योंकि नाइन मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रिप्लाई तक नहीं आते, सो इसको एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट लोगे ना, तो अपने आप एक मोटिवेशन आ जाएगा, नहीं यार कुछ तो आया सामने से, अप्लाई करते हैं फिर से।
अप्लाई अलॉट, अप्लाई करने के बाद आपका टेंशन जीरो हो जाना चाहिए, बिकॉज आपका काम था सिर्फ अप्लाई करना। अब कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपको शॉर्टलिस्ट करना है तो वो रिवर्ट करें, अगर नहीं करेंगे तो उनका नुकसान है, ठीक है। तो अगर आपको रिजेक्शन आ रहे हैं तो अगर आपको रिजेक्शन आ रहे हैं तो उससे उससे डील कैसे करना है यार। देखो ठीक है, दुखी अगर आप हो रहे हो कोई बात नहीं, इट्स ओके टू क्राई ओवर रिजेक्शन फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, बट अगर आप उसको दिनों तक उस पर परेशान होते रहोगे ना, तो आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज वो भी वैनिश हो जाएंगी। मिस जस्ट आउट हो जाए। इमेजिन, yeah, exactly, imagine you got a rejection from Microsoft today, and then on the next day you get a mail from Google. Would you be happy the next day? Would you be neutral, or would be sad कि यार Microsoft reject हो गया, ठीक है। So don't cry over your rejections because something better is waiting for you. Okay. ब्यूटीफुल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि यू आर एन आईसीपीसी रीजनलिस्ट 2019 के and been actively involved on various competitive coding platforms. So how did CP help you in software development? और अभी भी कैसे हेल्प कर रहा है? Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल सीपी से मेरी जर्नी किक स्टार्ट हुई थी। सीपी से ही मेरे को पता लगा है प्रोग्रामिंग डोमेन के बारे में अच्छे से, कि कोडिंग अच्छा ये भी होता है, ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी होती है, नॉट जस्ट लूप्स। पैटर्न ही बना रहा था उससे पहले तो मैं बस, ठीक है। तो CP helped me to get into programming, first thing. Second thing is, it helped me improve my problem solving skills, thinking abilities, which is very important in terms of basically problem solving. It is very important when you jump into software engineering as a career, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करनी है पूरे करियर में। कुछ ऐसा लूप बनाने को नहीं आ जाएगा कुछ, बट एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा सीपी, जो भी आप सीखते हो उस पर्टिकुलर डोमेन से, राइट। नाउ कमिंग बैक टू सीपी एज अ हाउ इट हेल्प मी, यू नो, मेरे को आईसीपीसी रीजनलिस्ट जो एक टैग है मेरे पास, मैं वहां गया था, अटेंड किया अमृतापुरी का रीजनल्स। तो वहां पे इतने लोगों से मिला, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी थी, कोचअप की पूरी टीम से मिला, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ रहा था उस पूरी टीम से मिला मैं वहां जाकर, और एक्सपीरियंस किया उस एनवायरनमेंट को जहाँ पे अमेजिंग कोडर्स कोड कर रहे थे, राइट। ऑल्दो वी वर नॉट एबल टू क्वालिफाई फर्दर, बट इट वाज अ एक्सपीरियंस, Okay. राइट। अदर थिंग इज, सीपी ने क्या क्या हेल्प किया, और क्या हेल्प किया, बहुत सारी मतलब इट्स अ ग्रेट स्किल, इट्स अ स्किल फॉर योर लाइफ, इट्स अ स्पोर्ट्स। It can give you the adrenaline rush if you're a college student. Directly it's not helping in my job, but indirectly it helped me improve my problem solving, which is helping in my job on day-to-day basis. Okay. So our placement season is on the door. So let's address the elephant in the room. Okay, a comprehensive strategy for placement, whether it is Okay. cracking the interview or the aptitude or the technical rounds. And also parallelly क्या आप अपना experience share कर सकते हैं regarding your placement, season. Okay. तो पहली बात तो सबको मैं बता दूं कि अभी अभी जैसे हम फाइनल ईयर पे फोकस करते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, बिकॉज उनके लिए ही कंपनीज अगर आती हैं या फिर उनके लिए ही हायरिंग होगी इंटर्नशिप से लेकर फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो आई एम अज्यूमिंग कि यू आर अवेयर, यू नो, you're good enough at a particular language, तो आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस करना ही अभी मेन आपका वो हो जाना चाहिए फोकस। देखो मैं किसी को ये फॉल्स होप नहीं दूंगा कि अगर आपने अभी तक प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए या आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती, आपने टेक स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको जॉब मिल जाएगी सीजन स्टार्ट होते ही, या इंटर्नशिप मिल जाएगी सीजन स्टार्ट होते ही। वो फालतू, वो झूठ है, साफ साफ झूठ है। क्योंकि सोच के देखो, जो स्टूडेंट टाइम से प्रिपेयर कर रहा है वो, विच इज एक्चुअली डिजर्विंग, तो उससे एक्चुअली अभी रिवॉर्ड मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। और जो अभी तक किक स्टार्ट नहीं करे हैं, गिव सम टाइम, जो यू विल आल्सो गेट द राइट अपॉर्चुनिटी। अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है, 5 पिलर तो हो गए जो हो गए, डीएसए प्रोजेक्ट्स एंड योर बेसिक्स। प्रोग्राम लैंग्वेज हटा देते हैं, डीएसए और प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं, बिकॉज दीज आर द टू थिंग्स जो आपको हेल्प करेगी इंटरव्यूज क्लियर करने में। डीएसए की प्रैक्टिस के लिए एक प्लेटफॉर्म पकड़ लो, इंटरव्यू बिट। रिवीजन के लिए प्लेटफॉर्म बोलता हूँ मैं इसे, रिवीजन प्लेटफॉर्म।
क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्स बने हुए हैं बहुत अच्छे से, एक एक टॉपिक का ट्रैक बना हुआ है, और उसमें जो क्वेश्चन है वो हाई क्वालिटी, क्वालिटी क्वेश्चन है सारे। उसको कर लो पूरी ट्रैक को, 1-1.5 महीने में ट्रैक कर लो पूरा, यू विल बी कोई रेडी प्लेटफॉर्म आप बिफोर इंटरव्यू। सजेस्ट कर सकते हैं फॉर डीएसए? इंटरव्यू बिट, ओके, इंटरव्यू बिट इट्स अ ओके, रिविजन प्लेटफॉर्म। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अपनी जो लर्निंग है डीएसए की जर्नी है वो वहीं से शुरू करो, बिकॉज वो रिविजन का प्लेटफॉर्म है। मैंने उसको एज अ रिविजन ही यूज किया था, और सबको यही प्रेफर करता हूँ। अगर आप सिर्फ जर्नी शुरू करना चाहते हैं डीएसए में, तो आप गीक होगी सिर्फ लीड कोड यूज कर सकते हैं, राइट। ओके। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज प्रोजेक्ट्स। आपने जितने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं पहले से, उसको इन एंड आउट पढ़ो, देखो कि करता क्या था, कौन कौन सी चीजें अपनी टेक्नोलॉजी उसमें यूज करी थी, उनके रिलेटेड क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं वो आप यूट्यूब पे देख लो, और अपने आप को प्रिपेयर करो उसी अकॉर्डिंग। तो आप इंटरव्यूज के लिए, डीएसए हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। थर्ड थिंग इज योर एचआर क्वेश्चंस। अब उसके लिए भी आप यूट्यूब इज द बेस्ट रिसोर्स, आप उस पर देख सकते हो क्या इन इन जनरल जो एचआर क्वेश्चंस होते हैं। देन कम्स दी सीएस फंडामेंटल्स। आपने एक बार सब पढ़ रखा है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं उन सारी टॉपिक्स का, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है जो कि मैंने अपने चैनल पे पहले से डाल रखी है, सीएस फंडामेंटल्स की, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, और उन टॉपिक्स को आप फटाफट से रिवाइज कर लें। Now, the most important thing before jumping onto the placement season is mock interviews. अपने peers से, अपने seniors से बोलो कि सर मेरा mock interview लो, और ताकि मेरी एग्जामिन कर सकूं मेरी प्रिपरेशन कैसी है, और ओके। पूरा जेन्युइन इंटरव्यू की तरह लो। उससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी। आई एम लाइक, क्या होता था जब जब मेरा टाइम था, तो मैंने इतने सारे मॉक इंटरव्यू दिए थे। मेरी इवन दो माय सिस्टर इज नॉट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डोमेन, बट मैं उन्हें जीएफजी का कोई भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस बोल देता था, माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन का, एंड शी यूज्ड टू टेक द कंप्लीट इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू दैट। मैंने इतने ज्यादा मॉक इंटरव्यूज लिए हैं बच्चों के, ताकि मेरी नॉलेज बढ़ सके कि एक्चुअली कहाँ कहाँ गलती करता है स्टूडेंट। तो दोनों चीजों में आप पार्ट ले सकते हो, एज ए इंटरव्यूवी और इंटरव्यूअर एज वेल। तो उससे आपकी हेल्प होगी। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज हो गई, यही चीजें हैं यार जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और चीजें बोलूंगा तो फालतू में बर्डन लगेगा। सीपी मत करना। इट्स यू नो इट्स एन एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर ब्रदर। सीपी मत करना जब आपका प्लेसमेंट सीजन आ रहा हो, जस्ट टू मतलब सीपी इन द सेंस कि एक तो जर्नी आप किक स्टार्ट कर रहे हो जब, तो आप सीपी कर सकते हो, बट जस्ट टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यूज आप सीपी मत कर। दैट इज माई एडवाइस फॉर यू। इन योर एक्सपीरियंस आपका कैसे गया था प्लेसमेंट सीजन? लाइक एक्चुअली मेरा कुछ काफी इंटरव्यू लास्ट, में भी, ये भी आप ये भी शेयर कर सकते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू प्रोसेस, हाउ वाज इट? मैं कह सकता हूँ एक्चुअली देखो दो चीजें होती है। अभी जो इंटरव्यू प्रोसेसेस हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े से ज्यादा इजी है कंपेरेटिव टू फिजिकल हायरिंग, बिकॉज वहां पे हम इंटरव्यूअर के सामने बैठे होते हैं। ही कैन सी एवरीथिंग। वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर ही कैन जज अस ऑन एवरीथिंग। आई वाज सिटिंग सो क्लोज टू दैट पर्सन, और तो वहां पे थोड़ा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ऑब्वियसली अलग होता है। ठीक है, ऑनलाइन में इंटिमिडेटिंग आज, हो जाता है थोड़ा। यस, ऑनलाइन में आप लोग भी जानते हैं कि आज की तारीख में जितनी चीटिंग हो रही है, you won't imagine a few days back engage का round टू हुआ, तो the recruiter sent me that screenshot, कुशल देख ग्रुप बन गया बच्चों के, you can imagine, and that group had 1200 plus students। तो एक ऑनलाइन टेस्ट में इतनी चीटिंग हो गई है, तो इंटरव्यू में भी होती होगी, क्योंकि बच्चों के पास दिमाग बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो सीखी है, पर गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं उसे। ठीक है, तो आई फील कि फिजिकल हायरिंग वाज मच मोर डिफिकल्ट देन, बट डेफिनेटली जो हमारा हायरिंग प्रोसेस था मैं उसके बारे में बताया, तो इट वाज अ 3 day हायरिंग ड्राइव, वेयर फर्स्ट डे वाज अ ऑनलाइन टेस्ट, then which was followed by a group fly round. The group fly round was a amazing concept by Microsoft, जो कि वो फिजिकल जब होती थी हायरिंग तब कराते थे। What they used to do, they used to give, मतलब यार मेरे को ऐसे बोलना, मतलब they used to give डीएसए प्रॉब्लम्स एंड सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम्स इन दैट राउंड। आपको करना पड़ता था उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर आपको। अब उसके अंदर क्या क्या हो सकता है वो अपने आप में एक अलग किस्सा है। अब सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन आपको एज ए सेकंड ईयर स्टूडेंट जब इंटर्नशिप की लाई थी, तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट को सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन दोगे तो क्या करेगा वो? और दैट इज द स्ट्रैटेजी दैट माइक्रोसॉफ्ट फॉलो, कि हमें जानना है कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जो आपको हवा नहीं लग रहा, राइट। सो दैट इज द थिंग।
So they were very much interested in your thought process, what solutions you can suggest, what problem constraints that you can come up with, what assumptions you can come up with, what components you can design for that system. So as a second year student, आप कितना सोच पा रहे हो, that is what they were judging at that point. Then comes the technical interviews. So it varies from person to person. Some some of them had 3 technical interviews. I personally had 2 technical interviews, then followed by a HR interview, and then the selection. Now, when it comes to this technical interview thing, it comprises of DSA problems, projects, and a bit of your OOPS concepts mostly. OOPS के बाद OS and DBMS same level पे, फिर आपसे CN कंप्यूटर नेटवर्क्स मिनिमम, मेरे केस में तो ऐसे था. बाकी एक और मैं चीज बताऊं, मेरे फ्रेंड्स ने गिटहब तक खुला लिया था उसका. सो यू कैन इमेजिन कि फिजिकल हायरिंग में कुछ भी हो सकता है. ऑनलाइन में आपसे शायद गिटहब खुला ले, बट मतलब ठीक है. तो जस्ट इमेजिन आपसे आपका गिटहब खुला लिया, आपसे बोला है, अच्छा ये कोड क्या करता है बता. तो थोड़ा अमेजिंग सा एक्सपीरियंस होता है वो. यू वेरी यू यू गेट टेंस एट दैट मोमेंट, नर्वस भी होते हो आप. और या कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, कोई पास बैठ के कुछ बता भी नहीं सकता. अच्छा, सो आपका पूरा इंटरव्यू लाइक कितने मिनट्स का या कितने, मतलब पूरा Okay, टाइम ड्यूरेशन कितना था आपके इंटरव्यू का? like all the interviews like 40-45 minutes each ओके, interview. Yeah, ओके, and the HR one was like 25 minutes, I guess. Gurfla अच्छा, round was 1 hour, and yeah, online test was 70 minutes. शायद पता नहीं यार, बहुत पुरानी है. Like yeah, 17 minutes, 70 minutes, I guess. Yeah. ओके, नो वरीज. मीरू, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? कुछ पूछना है तुमको? But So I can see a actually, lot of questions in the comments also. Okay. yeah, there Yeah, is we'll one be taking all question. those questions also. सर आपने अभी तक इंटरव्यू लिया है माइक्रोसॉफ्ट में क्या? No, so मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताना चाहूंगा यहाँ पे. So you might have seen uh, some XYZ companies like Amazon or maybe Google as well. So they have this criteria कि Amazon में तो ऐसा है कि घुसो आप, 1 महीना हुआ नहीं आप इंटरव्यू देना शुरू कर सकते हो. उनका है ये पॉलिसी, 1 महीना 2 महीना हुए आपको आप इंटरव्यू ले सकते हो. गूगल में देयर इज अ क्राइटेरिया कि आप अगर किसी पर्टिकुलर क्लाउड टीम में हो तो 6 मंथ्स का सीन होता है, अगर बाकी टीम में हो तो 1 साल का सीन होता है. 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए गूगल में. बट व्हेन इट कम्स टू माइक्रोसॉफ्ट, द पीपल दे हु टेक इंटरव्यूज पोजेस एक्सपीरियंस फॉर मोर देन 6 to 7 years. कोई फ्रेशर, कोई 1 साल एक्सपीरियंस आपका इंटरव्यू नहीं ले सकता. वी हैव दिस स्टैंडर्ड कि आपका जो इंटरव्यू लेगा उसके बाद बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, either in Microsoft, either in outside in some other organization, but 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए. Okay, that is one thing. Another मेरा thing जैसे that मेरा इंटरव्यू लिया था, माय इंटरव्यू वाज टेकन बाय समवन हु हैड लाइक, जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, ही हैड 12 years ऑफ एक्सपीरियंस. आज की तारीख में वो शायद डायरेक्टर है, डायरेक्टर लेवल पे है, विच इज वेरी वेरी हाई लेवल. okay, I can only relate कि अभी वाइवास चल रहे हैं हमारे and that is the older brother of Viva and it's completely overwhelming. So another thing that I wanted to ask जो कि अभी बहुत ज़्यादा फेस करें हम लोग, we had this 2 years of lockdown and online period and then suddenly everything got like, for us in third year everything got offline and now we don't have time to manage everything, so it's getting all overwhelmed. So can you suggest us how to manage everything, a proper timetable, and how to like college we vivas we exams we placements we and like obviously our hobbies too. And also, like you have that YouTube का hobby also, and then I skimmed through your college years. उसमें भी you were in different committees, like Google DSC में भी थे, Code Chef में भी थे. So like similar experience होगा. तो आप कैसे उस समय you how used to manage everything? काफी ज्यादा पूछा जाता है एक्चुअली वाला क्वेश्चन कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हो. मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है कि मैं जो यूज करता था, बट मैं यहाँ क्विकली बताता हूँ आप लोग को कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. बहुत थोड़ी हार्श एडवाइस भी लग सकती है आप लोग को, बट सबसे पहली चीज जो मैं करता हूँ, सुबह उठता हूँ, ब्रश करने से पहले मैं एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ, क्या मैं करूंगा क्या.
एंड इट डजंट मैटर कि मैं काम कर पाऊंगा, बट मैं कर बना लिखता जरूर हूँ, टू डू लिस्ट जरूर बनाता हूँ। इट इंक्लूड छोटे से छोटा काम एंड बड़े से बड़ा काम। छोटे से छोटा इन द सेंस फ्रॉम कटिंग नेल्स टू रेजिंग अ पुल रिक्वेस्ट इन द कोड बेस। ठीक है, तो छोटे छोटा से लेकर बड़े से बड़े तक का काम सब कुछ इसमें लिखता हूँ, ट्रैक रखने के लिए। दूसरा कि मेरे को क्या होता था ना कॉलेज में कि यार हमें पता है कि सुबह 8:30 से 5:30 तक क्लासेस चलनी है, और आपको भी पता है कि सारी क्लासेस में हम नहीं पढ़ते हो। कुछ ऐसे लेक्चर्स होते हैं इसमें टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको मन अंदर से मन करता है पढ़ो यार, इसमें तो पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे सारे लेक्चर्स नहीं होते। आप उन लेक्चर्स में सोते हो या फिर टाइम वेस्ट करते हो। मैं सोता भी था, और टाइम वेस्ट की जगह मैं जीएफजी की ऐप पे क्वेश्चन पढ़ता रहता था, लास्ट बेंच पे बैठता था मैं, और सिर्फ जीएफजी या फिर मैं क्या करता था, एक रजिस्टर मेंटेन करके रखता था जिसमें मैं जो भी क्वेश्चन टफ लगता था, फॉर एग्जाम्पल डायगोनल ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री करके क्वेश्चन है, डायगोनल ट्रेवर्सल या कुछ है, शायद डायगोनल ही है, पता नहीं क्या है। तो डिफिकल्ट लगती थी उसकी अप्रोच मेरे को उस टाइम पे सेकंड ईयर में। मैं सोचा इसको लिख लेते हैं, लिख लिया। जब मैंने पढ़ा उसको, फिर जब क्लास में फ्री रहता था तो उस अप्रोच को देख लिया, अच्छा अच्छा ऐसे होता था। तो उस वो मेरे को बाद के लिए भी एक एक वो रहने लग गया कि अच्छा ठीक है यार, ये अप्रोच फॉलो हुई थी। सिस्टम डिजाइन हो गया, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसका आर्किटेक्चर डिजाइन कर लिया आपने वहीं पर। सिस्टम डिजाइन का कोई टॉपिक है, अब आपका उसमें आर्किटेक्चर डिजाइन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपने उसको बना के रख लिया, अब रिविजन करना है उसका तो आपने क्लास में बैठे बैठे कर लिया। जब आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ने में, क्योंकि आपको पता है यार एग्जाम आने से 10 दिन पहले आप कंप्लीट कर लोगे सिलेबस। मतलब इंजीनियर्स कर लेते हैं, कुछ भी हो जाए 3 दिन पहले भी दूंगा ना तो कर लोगे आप। तो मैं इस तरीके से टाइम यूटिलाइज करता था, हालांकि गलत वे है किसी टीचर की आप मतलब वो करना, बट दिस इज व्हाट इट इज, राइट। तो ऐसे करता था। देन आफ्टर 5:30 जब हम लोग फ्री हो जाते थे तो सबका मन करता है कॉलेज के कैंपस में घूमना, आधे पौन घंटे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो। देन आई गो टू माई हॉस्टल। हॉस्टल में अगर आप रह रहे हो ना, तो जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आपको मिलेगा ना वहाँ पे, वहाँ वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने ज्यादा, क्योंकि आपके आसपास के लोग पता नहीं क्या क्या ही कर रहे हैं, और हॉस्टल में इतनी ज्यादा मस्ती होती है वो कहीं नहीं होती है। तो कोई पढ़ भी रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई गाने चला रहा है, कोई गेम्स खेल रहा है। वहां उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं है कि अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेना है, डू इंटरेक्ट विद पीपल, क्योंकि वो बेस्ट मोमेंट्स होते हैं लाइफ के। बट आपको अपने सर्कल को ये बता देना है कि भाई 9 से 12 ये वो टाइम है जब मैं खुद को आइसोलेट रखूंगा या रखूंगी, और मैं काम करूंगी। मुझे इस टाइम परेशान मत करना। एंड डू टेक्स, मेरे को उस टेक्निक का नाम याद नहीं आ रहा, पोमोडोरो ऐसे करके कोई टेक्निक होती है विच सेज 25 मिनट्स काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। मैं उसको ऐसे करता था, 45 मिनट्स काम करता था, 15 मिनट ब्रेक लेता था। इस तरीके से काम करोगे प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है। और आपको भी पता है 12 बजे के बाद हॉस्टल में पढ़ाई नहीं होती, उसके बाद आपसे मस्ती करते हो। हाँ, कुछ लोग होते हैं नाइट आउल्स जो कि रात को कोडिंग करते हैं, मैं वो था नहीं। मैं जल्दी उठता था और रात को जल्दी सोता था। सोता तो क्या, 2 बजे सोता था, जल्दी तो क्या, बट उठते हम लोग जल्दी थे। तो बट पॉइंट इज कि आप 12 बजे का पढ़ते नहीं हो, आप मस्ती करते हो उसके बाद। तो मेक श्योर आप जो 9 से 12 का टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, या 10 से 12 का जो भी टाइम है, क्योंकि इवन आप अगर 2 घंटे भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ डीए से पढ़ रहे हो या जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ रहे हो, तो दैट्स गुड इनफ। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में डीएसए, सिस्टम डिजाइन, कोर फंडामेंटल्स, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सब कर लोगे। डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम। आज मैंने डीएसए की 2 प्रॉब्लम्स कर ली, कल मैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का थोड़ा सा कर लूंगा, परसों मैं कोर फंडामेंटल्स के साथ डीएसए कर लूंगा। तो आपको मिक्स एंड मैच करके अपना वीक शेड्यूल करना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं करता था। बाकी इग्नोर करो उन दोस्तों को जो आपको रोज हर हर रोज बाहर ले जाते हैं घूमने करने, या फिर आपको मस्ती में ज्यादा इन्वॉल्व रखते हैं, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है यार। बाद में फिर मस्ती के लिए तो आज भी मस्ती, मैं लास्ट 2 महीने में 2 ट्रिप्स लगा चुका हूँ। तो यू कैन डू द मस्ती आफ्टर यू गेट अ जॉब। pretty much sums up everything, like literally. So अब थोड़ा off topic जाते हैं कि every year we have lakhs of engineers passing out, ठीक है? And the stress factor about placements, marks, family pressure, financial instability, सब पूरा एक साथ ग्रो करता है थर्ड ईयर के एंड में, या जब प्लेसमेंट सीजन चालू होता है। एंड इट इज़ वेरी एविडेंट कि सबका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स हो जाता है, बट स्टिल एवरी वन इज लाइक सो ड्रेडफुल, वो पूरा मोमेंट बहुत ड्रेडफुल फील होता है। So how to like calmly go through that process? How to have that mindset? बिल्कुल। और देखो, जैसे डिसअपॉइंटमेंट, डिस्ट्रेस, ये वाली चीजें होती है ना,
ये एक्चुअली अच्छी हैं अगर आपको ये हो रही है तो, क्योंकि एक प्रेशर बना रहता है इंटरनल कि आगे वाली बेटर करना है। अगर ये नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम है। आई टेल यू माई स्टोरी। व्हाट हैपेंड वाज, आई वाज एट होम, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, एंड इट वाज 16th of July. आई वाज एट माय फ्रेंड्स प्लेस। मेरे को, अरे वी आर वाचिंग मूवी, तो मेरे को कॉलेज ग्रुप के मैसेज आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इज कमिंग टू द कैंपस। आई वाज लाइक ओके। तो स्ट्रेस शुरू हुआ। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा टाइम से इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। अब वो लम्हा आ चुका है कि आपको अपना 100% देना है। आई वेंट टू माई कॉलेज। 19th को अमेरिकन एक्सप्रेस का हैकर का टेस्ट था, और यू वोंट इमेजिन, आई परफॉर्म। मेरा अच्छा नहीं गया था वो, लाइक कंपैरेटिवली मेरे फ्रेंड्स का अच्छा गया था। मतलब मेरे से 1.5 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, उनसे 2.5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए 3 क्वेश्चन में से, तो सबका बहुत बहुत अच्छा गया था। अब मेरा अच्छा नहीं गया था। आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड यार। मैं इतना स्ट्रेस था कि इतना प्रिपेयर कर लिया भाई, और इतना बेकार टेस्ट गया है, क्या ही प्रिपरेशन करी है। और आई वॉज लाइक आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी माई सेल्फ। और उस टाइम मैं भी नूब था, बिकॉज सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, कैसे अपने आप को मोटिवेट करेगा कि यार तू अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। ठीक है। One of my friend, he's my best friend, right? He's today also he's my best friend. He told me, कुशल, उन लोगों के पास जाना छोड़ दे जो तेरे को इनसिक्योरिटी देते हैं, जो तेरे को ये रियलाइज कराने का कोशिश करते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ। I stopped going to those people. They are my friends even today. But I, for that particular week, I left because मेरे को पता था कंपनीज आ रही है। I need to focus on what I want to do. तो पीयर ग्रुप जो होता है ना आपका, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं आपके आसपास, जिससे आपको इधर मोटिवेशन मिल सकता है या डिप्रेशन मिल सकता है। राइट। तो यही मेरे साथ हुआ। एंड द मोमेंट व्हेन आफ्टर अ वीक और सो, मैं माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न क्रैक कर चुका था, और बाकी लोग नहीं करे थे, जिन जिन ने उस दिन अच्छा परफॉर्म किया। सो आई, दिस इज द स्टोरी दैट आई फील कि आपका जो पीयर ग्रुप है वही आपको मोटिवेट करता है या वही आपको डिप्रेस करता है। एंड वही अगर आपका अच्छा होगा तो भी आप ओवरकम जल्दी कर पाओगे। जस्ट इमेजिन, आपके साथ कभी भी कोई गलत चीज होती है, आपको बुरा लगता है किसी चीज में, तो आप क्या करते हो सबसे पहले? आप उस इंसान के पास जाते हो जो आपको अच्छा फील करा सके। राइट, सेम थिंग हैपेंस हियर एज वेल। ऐसे लोग के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको उस सिचुएशन से बाहर आने में हेल्प करे, इंस्टेड उसी सिचुएशन को सोचने पे मजबूर करता रहे। बात Next question is from Omkar. How to study for Microsoft Engage program? I think MS वही है, अच्छा। हाँ. Yeah. हाँ, तो यार वो प्रोग्राम अभी 2024 बैच के लिए हो चुका है। 2023 बैच के लिए मे बी होगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन। तो ऑनलाइन टेस्ट हैं, वो सीएस फंडामेंटल्स कवर होते हैं, उसके अंदर डीएसए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कवर होती हैं, डीएसए कवर होता है, क्योंकि आप अपनी रेगुलर प्रिपरेशन प्रिपरेशन में भी कवर कर रहे होते हो। एंड बस यही प्रिपेयर करना है आपको उसके रिलेटेड। ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू योर ट्रेनिंग पार्ट, तो उसके अंदर तो कंपनी आपको प्रोजेक्ट देगी, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको वो चीज पहले से आती होगी, वो भी श्योर नहीं है, और नहीं भी आती होगी, ये भी श्योरिटी नहीं है। फॉर द ऑनलाइन टेस्ट यू जस्ट हैव टू डू द सीएस फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डीएसए, बस, और कुछ नहीं। जनरल जनरल सिलेबस है। आपने अगर टेस्ट दिया है तो आपको पता होगा कि ठीक था, मतलब पहला टेस्ट तो बहुत इजी था, सबका हो गया। दूसरा टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट था। भैया आई हैड अ क्वेश्चन कि अभी जो लोग लीड कोड फाड़ देते हैं, 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, बैचेस ला रहे हैं, सीरियसली, हाँ। लाइक फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं लीड कोड बहुत कर रही थी लॉकडाउन में, बट सिंस द कॉलेज स्टार्टेड इट्स लाइक कि ओके हो जाता है, आज फिर कल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, टाइम नहीं मिल रहा. So how important is like doing and digging in lead code and doing every question on lead code? ओके, देखो, डेफिनेटली अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस करते हो तो आपको हेल्प करता है, इसमें आप कोई दो राह नहीं है। रीजन, आपको रीजन बताता हूँ। इट्स ऑल अबाउट, you know, the more questions you do, the probability of getting a question in an interview around that which you have already solved is high. Obviously बात है, जितने ज्यादा प्रॉब्लम करोगे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ऐसे सिमिलर क्वेश्चन कहीं ना कहीं हिट हो जाएगा इंटरव्यू में। तो इट्स अ गुड थिंग आप ज्यादा सॉल्व कर रहे हो तो। बट इट्स अ बैड थिंग अगर आप इजी टॉपिक या फिर एक ही टॉपिक के रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन करे जा रहे हो,
उससे सिर्फ नंबर बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है। अ, अब ऐसा है कि अगर आप क्वालिटी क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। तो आप वहाँ नंबर को मत देखो, क्वालिटी को देखो। क्वालिटी डेफिनेटली मैटर्स देन क्वांटिटी। क्वालिटी हमेशा प्रेफर करूंगा मैं क्वालिटी क्वांटिटी पे। तो और दूसरों से कंपेयर मत करो यार, प्लीज मत करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है, मैं भी करता हूँ। आप इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट इस चीज को रिड्यूस कर सकते हो आप। दूसरों से कंपेयर करना इज इन लाइक इट्स ए ह्यूमन नेचर, इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, बट इसको जितना रिड्यूस कर सकते हो करो। और हाउ टू रिड्यूस दिस कि यार जिस आपने कभी भी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है ह्यूमन नेचर की क्या है, आप हमेशा अपने से बेटर वाले से अपने आप को कंपेयर करते हो। कभी भी खुद को ये नहीं देखते हो कि आप जिस पोजीशन पे हो, पीपल आर स्टिल यू नो पीपल लुक फॉर यू, मतलब आपकी पोजीशन के को एक एज अ ड्रीम देखते हैं। ठीक है। तो एक बहुत फेमस कोट है, यू आर लिविंग समवन्स ड्रीम लाइफ। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके अपनी जो भी आपका लाइफस्टाइल है, जो वट एवर यू आर डूइंग, जिस भी लेवल पे, जिस भी तरीके से आप अपने आप को वो करते हो, देखते हो, वो मत करो। बिकॉज पीपल लुक टुवर्ड्स यू, मतलब आपको आपको एक मार्गदर्शन की तरह देखते हैं वो लोग भी। कुछ ऐसे लोग भी हैं। डू वट एवर, आप अपने आप से कंपेयर करो यार। ठीक है, 1 महीने पहले मेरे से ग्राफ नहीं होते थे, मैंने 1 महीने ग्राफ पे फोकस किया, आज मैं ग्राफ में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। यू आर ग्रोइंग, एंड दैट इज द थिंग यू शुड यूज एज अ मोटिवेशन, इंस्टेड कि यार वो तो कर लेता है, वो तो इतने सारे क्वेश्चन कर लेता है दिन दिन में, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो हम लोग भी ऐसे करते थे बातें सेकेंड ईयर में जब हम थे। आई माय फ्रेंड, हम लोग बहुत गॉसिप करते थे रात में। दूसरों की जीएफजी प्रोफाइल्स पे आके देखते, अरे इसने 20 क्वेश्चन करे, हम तो 12 ही करे। वही 20 क्वेश्चन किस तरीके से बना लेते हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता इतना। बट इवेंचुअली थिंग्स फॉल इन प्लेस विद टाइम, मतलब क्वालिटी क्वेश्चंस करो, दैट्स इट। ओके, और एक और देखो, ये जो फॉलो। नंबर क्वेश्चन है ना, ये अपने आप हो जाएगा। आप अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप अगर प्रैक्टिस कर रहे होते ना, 5 प्रॉब्लम्स अ डे करते ही हो, इट्स अ मिनिमम थिंग। आप उसी चीज को 2 महीने करो, आप यू विल रियलाइज यार 300-400 प्रॉब्लम्स हो गई। तो यू आर वेरी मच नियर टू द पर्सन हु हैज डन लाइक 500 और 800 प्रॉब्लम। आपने 2 महीने में करा, उसने 1 महीने में कर लिया होगा। डजंट मेक सेंस, डजंट मैटर। आपने करा ना, दैट मैटर्स। Okay, एक और follow-up question. How to approach questions, like the right way to approach a question. पहले question पढ़ा and then उसका algo बनाया and then how to follow, like कैसे करना है उसको? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। तो देखो क्या होता है, सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को लगती थी जब मैं एज अ जब मैं सॉल्व करता था, अब मैंने डीएसए काफी टाइम से किया नहीं है। तो हम क्या करते थे, प्रॉब्लम को रीड एक बार में करके लगता था कि हो गया है, समझ आ गया है, बट एक्चुअली समझ नहीं आया होता। तो ये मेरी हैबिट मेरे को डलवाई मेरे किसी फ्रेंड ने या मेंटर ने डलवाई थी, कि मैं रीड बहुत बार करता था क्वेश्चन। इवन तो मुझे लग रहा है कि मुझे समझ आ गया है, मैं उसको फिर से रीड करता था। फालतू में रीड कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को कि यार कुछ तो नया पकड़ में आएगा। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं उसको सोचता कम था, लिखता ज्यादा था। हम क्या करते हैं, हमें लगता है हम जीनियस है, हाँ इमेजिन कर लेंगे चीजें हवा में, अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है हम। हमें पेपर पेन की जरूरत पड़ेगी। पेपर पेन उठाओ, जो जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, लिटरली वो लिखो। एंड एक एक टेक्निक होती है जो कि जापान में फॉलो होती है। दे वट एवर दे डू, दे पॉइंट द फिंगर टू दैट पर्टिकुलर थिंग। उससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप बोलते हो ना कि यार मतलब दे लिटरली पॉइंट एट अ पर्टिकुलर थिंग व्हाइल रीडिंग दैट थिंग, क्योंकि उससे आप दो चीजें करनी पड़ती है। फिजिकली आपका ध्यान उधर होना चाहिए और मेंटली भी ध्यान उधर होना चाहिए। तो आपका फोकस ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज, रीड बहुत ज्यादा करो। रीड करने के बाद लिखो उसको, जो भी आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। अपनी स्ट्रैटेजी दो तरीके से, पहला, क्या ऐसा ही कोई क्वेश्चन मैं पहले कर चुकी हूँ, क्या इससे क्या मेरे को कोई डेटा स्ट्रक्चर ऐसा समझ आ रहा है जो कि मैं यूज कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको भिड़ती क्लिक हो जाता है, अरे ब्रूट फोर्स से तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, 2 लूप लगाऊंगी, खट 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 हो गया। लेकिन यार फिर आप जाते हो, कॉन्स्टेंट्स देखते हो, अच्छा 10⁵5 है, एंड 1 सेकेंड का टाइम
वो दे रखा है। अब यहाँ पे आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना उतने आपको आइडिया लगता है 10 है, तो इसके अंदर मेरे को जो कॉम्प्लेक्सिटी लानी पड़ेगी वो मेरे को लानी पड़ेगी n log n की। अब जब भी n log n दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी? बाइनरी सर्च, और सॉरी नॉट बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आपके दिमाग में आती है बिकॉज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज n log। तो आप इस तरीके से आइडियाज कलेक्ट करते हो। अच्छा, सॉर्टिंग का कहीं यूज आ रहा है क्या इसके अंदर? सिमिलरली जब आपके पास 10 3 दे रखा होता है, तो आपको लगता है अच्छा 10 3 है यार, इसको तो मैं अगर n स्क्वायर भी करूंगी तो भी मेरा काम हो जाएगा 1 सेकंड का, अगर आपको टाइम दे रखा है, बिकॉज 10 8 कैलकुलेशन पर सेकंड कर सकता है आपका कंप्यूटर। और कभी कभी आपको 10 9 दे रखा होता है, तो फिर आप सोचते हो अच्छा इसके अंदर तो लॉग इन में काम करूंगी तभी काम होगा बिकॉज 1 सेकंड का टाइम दे रखा है। तो दिस इज हाउ यू ऑप्टिमाइज योर, हर जगह से सोच रहे हो आप कि यार कॉन्स्टेंट देख लिए 10 9 है, लॉग इन की कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। अब लॉग इन की जब बात आती है तो आप क्या सोचते हो, अच्छा बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं क्या? सो दिस इज हाउ आई यूज टू थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स, और ऐसे ही करके सॉल्व करता था। मतलब ये भी ऐसा स्किल है जो कि टाइम के साथ ही आएगा, और ऐसे तो नहीं कि कल कल से आ जाएगा, बट या बट ये इट्स अ हेल्पफुल थिंग जिसने मेरे को हेल्प करी। Yeah. सो प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम डेटा स्ट्रक्चर्स वाइज ही सॉल्व करना चाहिए, या फिर कोई भी रैंडम लिट कोड से प्रॉब्लम उठा सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर मर्जी लिस्ट वगैरह फॉलो करके करना चाहिए? मर्जी है आपकी। देखो मैं कभी किसी को इस पे वो नहीं करता, कॉन्स्टेंट नहीं करता कि आप ये लिस्ट फॉलो करो या आप टॉपिक वाइज फॉलो करो। आप जब पढ़ रहे हो ना कई बार, तो टॉपिक वाइज कर लो। एक जब प्रैक्टिस करते हो तो रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व करा करो। नहीं तो आप एक तरीके से अपने आप को फॉल्स आइडिया दे देते हो अगर आप एक टॉपिक वाइज प्रॉब्लम कर रहे हो कि भाई ये होनी तो डीपी से ही है, फिर चाहे कितने ही सोच लूं, अगर डीपी टॉपिक सॉल्व करो तो होनी तो डीपी से ही है। ठीक है, हाँ। तो प्रैक्टिस जब भी करो तो रैंडम प्रॉब्लम्स करो। ओके, मेरे को लगता है एक बहुत ज्यादा टाइम हो गया और बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें हो गई हैं, हाँ, तो कोई और फॉलो ज्यादा अप हो गया। क्वेश्चंस लाइक ओमकार बार बार ज्वाइन हो रहा है, आई थिंक वो है अभी भी क्या? और जितने भी स्टूडेंट्स अगर यहाँ आए हैं देख रहे हैं, वैसे लाइफ पे कम ही लोग आते हैं, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मैं रिप्लाई देता हूँ यार, हर प्लेटफॉर्म पे रिप्लाई देता हूँ। थोड़ा टाइम लग सकता है बट रिप्लाई जरूर देता हूँ मैं। तो आप कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे थोड़ा फन एंटरटेनिंग कंटेंट, ओके, मेरी लाइफ से रिलेटेड कंटेंट। लिंक्डइन पे थोड़ा मोटिवेशन, लर्निंग का कंटेंट। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर जॉब से रिलेटेड कंटेंट। ओके, सो ट्विटर के विल ऊपर। शेयर योर, आपका यस, पूरा लिंक्स आपका शेयर कर देंगे हम अपने ग्रुप पे, सो डोंट थैंक्स अ वरी लॉट। अबाउट। या सो आप हाँ बिल्कुल। एनी मैसेज, सॉरी And सॉरी, yeah, बोलिए। I also wanted to highlight about that 4 month preparation strategy on Kushal's like YouTube channel. हाँ, आप A लोग फॉलो कर special सकते हो। mention to that. या यू कैन फॉलो दैट स्ट्रैटेजी। अगर आपको उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट डिस्कॉर्ड सर्वर फॉर इट, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। ठीक है। ओके, एक चीज और जो आपने बोला कि क्या, देखो लक जिसको बहुत ज्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं वो मैटर करता है, बट हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी आर समथिंग विच कैन पुट यू इन अ प्लेस वेयर लक विल फाइंड यू। तो या आप कुछ भी कर रहे हो, हार्डवर्क अगर आप उसमें दिखा रहे हो, कंसिस्टेंटली वो चीज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको फ्रूट्स मिलेंगे। आज नहीं तो कल, कोई बात नहीं, आपके आस पड़ोस वालों को आज मिल गए, आपको कल जरूर मिल जाएंगे। अगर आज मेरे को कोई और कंपनी में जॉब मिलती तो मैं इतना श्योर हूँ कि मैं यहाँ नहीं रुकता, वहां नहीं रुकता, मैं कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। हाँ, इवन इवन टुडे आई से टू पीपल, इट्स ओके टू बी स्लो, बट इट्स नॉट ओके टू बी स्टैग्नेंट। या आपकी ग्रोथ स्लो है, कोई बात नहीं, आप अगर स्टैग्नेंट हो एक ही जगह पर हो, वो प्रॉब्लम। ओके। सो ये भी क्वेश्चन था कि अभी ड्रीम जॉब तो लग गई, अब इसके आगे व्हाट आर योर फ्यूचर एंडेवर्स, मतलब क्या कर रहे हो इसके बाद? you you know I'll tell you a quote, and if you'll understand it you may get my answer too. ओके, uh, you got to have everything to realize nothing actually matters. तो आई थिंक दैट आंसर्ड इट। ठीक Yeah. है। So you have been a Yeah. wonderful guest, and you literally elaborated everything so beautifully. And thank you for giving us your precious time. And thank you for coming, Kushal.
So I Thanks a think we lot, can folks. wind up if you do not have any questions, other questions. थैंक यू फॉर बीइंग सच ए नाइस ऑडियंस. अपना टाइम बर्बाद करने के लिए थैंक यू मेरे पे. अरे, अगर फिर भी कोई no, क्वेश्चन हो तो no. प्लीज डू रीच मी अप. We'll It share was your links, worth it. Yeah. everything with our viewers. So, yeah. Omkar, any ending remarks? Finally, to join kya? Thank you, Kushal, for joining this podcast or a session. We are really thankful to you नो to for this session. Thank you. प्रॉब्लम एंड बाय बाय. टेक केयर. हैव अ ग्रेट Bye, डे. Kushal. Bye. Thank you so Thank much again. you. Bye-bye. Bye.